ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸ਼ੋ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੱਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫਾਊਂਡਰ ਐਂਡ CEO ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਐਕਸ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰੰਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਫਿਰੰਗੀ ਆਇਆ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਊਟਸਾਈਡਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰੰਗੀ ਵਰਡ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਫਿਰੰਗੀ ਵਰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਬਟ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਕੋਰਸ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ DNA ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਹੂ ਵਰ ਓਕੇ ਵਿਦ ਮੇਕਿੰਗ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੀ ਮਾਈਟ ਬੀ ਮੇਡ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਗੇਨ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਫਿਰੰਗੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਇਨਸਾਈਟਸ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਆਪ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਫਿਰੰਗੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੰਡਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਈਓ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫਿਗਰੇਟਿਵਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਟ ਲਿਟਰਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰੰਗੀ, ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ है। सर, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस पे आते हैं। भारत की मदद के बावजूद सुनने में आ रहा है कि उनका ईंधन अप्रैल अंत तक ख़त्म हो सकता है, और राजपक्षे हैं कि वो अभी भी अपने सरकार के कामों को जस्टिफाई कर रहे हैं। देखो, व्हाट ही इज सेइंग इज ही इज़ ब्लेमिंग इट ऑन पेंडेमिक कि भाई हमारी जो एक इनकम ख़त्म हो गई और रेमिटेंस बाहर से जो आते थे, जो श्रीलंकन बाहर रहते हैं, उसका इम्पैक्ट है। पर ये पूरी स्टोरी नहीं है। इसका इम्पैक्ट होगा डेफिनेटली, पर ये पूरी स्टोरी नहीं है। और ईंधन अप्रैल में ख़त्म हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका की ऐसी सिचुएशन है, ये ना एक विशियस साइकिल होता है। ईंधन ख़त्म हो रहा है तो कंपनियां अपनी प्रोडक्शन पूरी नहीं कर पा रही, फैक्ट्रियों में आउटपुट नहीं हो पा रही, फैक्ट्रियों में आउटपुट नहीं होगी तो वो लोगों को नौकरियों पे नहीं रख पा रहे, वो पैसा नहीं बना पा रहे। तो इसका एक बड़ा विशियस सर्कल है। अभी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फॉरेन करेंसी, क्योंकि ऑयल भी नहीं इम्पोर्ट कर पा रहे हैं अभी तक, तो इंडिया की क्रेडिट लाइन है वो भी तब तक ख़त्म हो जाएगी जी। और हो क्या रहा है कि एग्जामिनेशन के लिए, बच्चों के एग्जामिनेशन के लिए पेपर इंपोर्ट कराने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वो पेपर नहीं। आप यू कैन ट्राई टू इमेजिन दिस सिनेरियो। उनकी ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, उनकी दालें, उनका खाने की काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। और ऊपर से कई बार होता है कि जब आप एक देश को कंपनी की तरह चलाते हो, CEO की तरह चलाते हो और अपनी मन मर्जी करते हो, उसके भी नुकसान है। अब बिना सोचे समझे राजस्थान गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई हम यहाँ पे यूरिया नहीं यूज़ होने देंगे, सारी ऑर्गेनिक खेती होगी, प्रोडक्शन बिल्कुल डाउन होगी, चीज़ों की महंगाई और बढ़ गई। ऊपर से हिट ऑफ कोविड, क्योंकि ऑफकोर्स वो टूरिज्म पे डिपेंडेंट थे, और वो चीज़ें चलो खैर रिकवर भी करेंगी। तो और ऊपर से डेट क्राइसिस गिवन बाय चाइना। तो अगर आप चाइना से हाई इंटरेस्ट रेट, और अब वो उनके लिए कोई भी रेट एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, और सिंपल सी उनकी स्ट्रेटजी है, उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि अगर आप नहीं दे पाए तो ये क्रिटिकल असेट हमारे, तो दे आर वेटिंग टू पोच ऑन दोज क्रिटिकल असेट्स। तो आई थिंक ये टाइम आ गया है कि IMF शुड कम इनटू इट, और IMF बेल आउट के बिना श्रीलंका के लिए इस शॉर्ट टर्म में निकल पाना बहुत मुश्किल है। और जो कंट्रीज, इंडिया जैसी कंट्रीज, इनफैक्ट सनत जयसूर्या जी ने भी बोला है कि थैंक यू बिग ब्रदर इंडिया फॉर हेल्पिंग। आई थिंक इट शोज द काइंड ऑफ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन जो इंडिया देना चाह रहा है अपने नेबरहुड में। And in the neighboring countries, we should keep on supporting our neighbors for a better life, for a peaceful environment. जो hegemonic mindset वाले चाइना के साथ कभी नहीं हो सकता।
हेजेमोनिक माइंडसेट की आपने बात करी सर, जो बाइडेन ने कहा है कि रशिया को यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से निकालकर ग्लोबल कम्युनिटी का एक सार्थक कदम है। देखो वो तो यही कहेंगे, और जो बाइडेन जी का अगर चलो ह्यूमन राइट कमीशन से निकाल भी दे, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, एक और सैंक्शन लगा दी जो बाइडेन से। द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड फ्रॉम जो बाइडेन एंड इवन पुतिन इज कि वॉर कब खत्म करोगे, यू आर ब्लेमिंग एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर डाइंग, इतने लोग जो मर रहे हैं उसके लिए कौन आंसरेबल है, राइट? दी जिस तरह की पेन के थ्रू यूक्रेन के लोग गुजर रहे हैं, और इवन एक सर्टेन लेवल तक शायद रशिया के लोग भी, ये सैंक्शंस उनकी भी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनके भी लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट करती होगी। यूएस की, यूरोप की सारी कंपनियां वहां से चली गई, तो वहां पे हजारों रशियन लोग भी तो काम करते होंगे, तो इसका कॉस्ट तो आम आदमी पे कर रहा है। और ये पॉलिटिशियंस, ये हेजेमोनिक पावर्स, रशिया, ये यूरोपियन कंट्रीज, नेटो, दीज आर ऑल हेजेमोनिक पावर्स। तो इनका टाइम आई थिंक दिस इज व्हाट मेक्स द वर्ल्ड डेंजरस। इनके जो माइंडसेट है कि एवरीवन हैज टू रन आवर वे और हाईवे, ये जो माइंडसेट के साथ चलते हैं, आज अगर आप देख लें जो बाइडेन की स्टेटमेंट की, तो सैंक्टिटी इसी चीज में रह गई है कि व्हाइट हाउस कम से कम 3 बार पिछले 1 महीने में उनकी स्टेटमेंट को निगेट कर चुका है। वो ये कह रहे हैं कि हम जो हमारे प्रेसिडेंट कह रहे हैं वो हमारी पॉलिसी नहीं है, वो अमेरिका की पॉलिसी नहीं है। तो अगर आपका कमांडर इन चीफ इज नॉट कंट्रोल ऑफ व्हाट ही और शी इज सेइंग, तो इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। वो सोल्जर्स को जाके बोल रहे हैं कि अब जब आप यूक्रेन जाओगे तो उन सोल्जर्स को, कमांडर्स को, जनरल्स को, व्हाइट हाउस को, किसी को पता ही नहीं है कि इन्होंने यूक्रेन जाना है कि नहीं जाना, एंड देन दे डिनाई। वो कह रहे हैं कि रिजीम चेंज की जरूरत है, एंड यूएस इज सेइंग इट इज नॉट आवर नेशनल पॉलिसी। तो बिडेन हैज आल्सो लॉस्ट कंट्रोल, और वो डेस्परेट है अपने सेकेंड इलेक्शन के लिए। और जो भी वहां की रिपोर्ट्स आ रही हैं, इन ऑल लाइकलीहुड जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने ही जो बाइडेन को अपना अगला कैंडिडेट चुनना ही नहीं है, क्योंकि उनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत डाउन है, और उस अप्रूवल रेटिंग को बढ़ाने का काफी बार नेताओं के पास तरीका होता है, लड़ाई शुरू कर दो। और ये भी कई बार इसका ब्लेम यूएस पे भी उतना आता है जितना रशिया पे आता है। रशिया इज ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड कि उन्होंने एक देश पे हमला किया है, और डिस्कशंस तो हमेशा कंटिन्यू हो सकती थी। ऐसा नहीं था कि वो भी नेटो का मेंबर बन गए थे, डिस्कशंस हो सकती थी, पर अमेरिका को भी समझना चाहिए कि आप किसी देश को ऐसे कॉर्नर में पुश करोगे, दे माइट रिस्पॉन्ड, और रशिया ने वो रिस्पॉन्स दिया है, और जिसने पूरे वर्ल्ड को एक डेंजरस प्लेस बना के रख दिया। सर, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। देखो वैसे जे पोलिटिकल व्यूज ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, एवरीवन शुड लिसन टू दी आइडियाज ऑफ आवर गुरुस, ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਇਟ ਓਪਨ ਫॉर एवरीवन, ਵੀ ਵਿਲ ਪੁੱਟ ਇਨ ਦੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਐਂਡ एवरीथिंग। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਲਈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਐਕਸੈਸ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਆਸਾਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ, ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਈਜ਼ੀ। ਤੇ ਵਾਈ ਜਸਟ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਫ ਤੇ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਲੈਸਨ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟ, ਇੱਕ ਸੁਵਿਚਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਕੋਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਰਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਟੇਕਿੰਗ them off the track, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਗੋਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਦੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜਨ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ, राइट, बट इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एन एजेंडा, इट शुड बी कि भी हर किसी को मैसेज पहुंचे। तो आई थिंक दोनों तेरे गल इको ही करते पे ने कि गुरबानी नू हर जनमानस तक पहुंचाना, तो यह होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल व्यूज सर। ऐसे ही सिग्निफिकेंट और मीनिंगफुल इंसाइट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डाउनलोड आवर ऐप। थैंक यू।